Welcome back to the online classes of SGOI. Students, today I am going to discuss the questions related to theorem SAS, okay, of chapter triangle. Now, the first question is in figure. This is figure, okay. QR upon QS is equals to QT upon PR. And angle 1 is equals to angle 2. Show that triangle PQS similar to triangle PQR. Okay. Now see the solution. In the question given that QR upon QS is equals to QT upon PR. Okay, students, let this equation number 1. And in figure and angle 1 is equals to angle 2. Now, to prove, we have to prove PQS similar to triangle PQR. Okay, now let's see the proving. Students, in triangle PQR, okay, PQR angle PQR means angle 1 is equals to PRQ means angle 2. As we know that if the angle of a triangles if two angle of a triangles are equal, then their opposite side is also equal. Means PR is equals to QP. Here opposite side of equal angles. Okay. Now, in equation number 1, if we put the value of PR in equation number 1, we get QR upon QS is equals to QT upon QP. Okay. Let this equation number 2. Now students, in triangle PQS and triangle QTR, angle PQS and QR angle PQS is equals to angle TQR. This is common angle. Okay. Now, from equation number 2 and 3, let this equation number 3. From equation number 2 and 3, we can say that triangle PQS similar to triangle TQR by SAS similarity. Okay.
2S and PQR. Then by SAS property we can say that these two triangles are similar. Now let's see the second question. Now student, the next question is, if triangle ABE congruous triangle ACD, ABE congruous triangle ADC, okay, then so that triangle ADE similar to ABC, okay. Now given that triangle ABE congruous to ACD, okay, if triangle ABE congruous to ACD, then we can say that here to prove triangle ADE is similar to ABC, okay. Let's see the proving. Then if triangle ABE congruous to triangle ACD, then we can say that side AB is equals to side AC and side AB is equals to side AC. Why? Because we know that the corresponding parts of two congruous triangles are equal, okay. We know that parts of two congruent triangles are equal, okay, by simplicity. Similarly, AD upon AE, this is also by simplicity. AD upon AD, this is AE. AE upon AB, okay. AB upon AB is equals to AC and AE is equals to AD, okay, by simplicity. Then students, if we divide these two equations, then it becomes AB. We can write this equation AD AE. This is equation number 1 and this is equation number 2. On dividing from equation number 1 and 2. Okay, if we divide these two equations, it becomes AB upon AD is equals to AC upon AE. AB upon AD is equals to AC upon AE. Okay, let this equation number 3. Now students, in triangle ADE and triangle ABC, angle DAE, angle DAE is equals to angle BAC. This is common angle. Okay, angle DAE means this angle or BAC means this angle. This is common angle. Let this equation number 4. Then students, by equation number 3 and 4, let's see the diagram. Equation number 4 is this angle and 3 is AD, AB upon AD and AC upon AE. Then we can say that by
by equation number 3 and 4, triangle ADE similar to triangle ABC. Okay? By SAS similarly. By SAS similarly. This is your final proving. Now students, what is SAS similarity? If one angle of a triangle is equal to the one angle of another triangle, then their respective sides are proportional, then these two angles are similar. For example, see the diagram. If this is two angle, this angle is equals to this angle, and the side including the angles means this side and this side and this. If their ratio is proportional, then we can say that these two triangles are similar. Okay? Now let's see the next question. The next question is, D is a point on the side BC of a triangle ABC. Firstly, draw the triangle. Draw a triangle ABC. Here D is a point on side BC. Okay? Such that angle ADC means this is equals to BAC. Means this. Then show that CA square is equals to CB into CD. Okay? Let's see the solution there. The given value is D is a point on BC and angle ADC is equals to angle BAC. To prove CA square is equals to CB square into CD. Okay? Now in triangle ABC and ADC, angle ADC is equals to angle BAC. Angle ADC is equals to angle BAC, means these two angles are equal. Given, this is given. Okay? And angle ACD is equals to angle ACB. This is common angle. Okay? Angle ACD is equals to angle ACB. This angle is common. Okay? Now by the AB similarity, we can say that triangle ABC similar to triangle ADC by AA similarity. Okay? If these two triangles are similar, then we know that if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. Means AB upon AD and AB upon AD and CB
CB upon AC, CA and CA upon CD. Okay, AB upon AD is equals to CB upon CD is equals to CA upon CD. Okay. Now students, as we know that if two triangles are proportional, then their the ratio of their corresponding sides is equal. Okay. Then if we take these two terms, means CB upon CA is equals to CA upon CD. Then after cross multiplication we get CA square is equals to CB into CD. Okay, and this is final answer. Okay, now students, that's all for today. We will continue this chapter on my next class with some another type of questions. Okay, thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत आपको पाठ पढ़ाऊंगी अन्यों की विभाषा। इसमें 5 श्लोक हैं। मैं उन सभी का 5 अच्छे श्लोक हैं, उन सभी का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाऊंगी। उससे बच्चों देखिए
हे हंस निर्जीव विवेकी हंसलस्या, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा, अर्थात कोई। कवि का भाव है कि हे विद्वान पुरुष, यदि उचित और अनुचित, झूठ अथवा सच का विभाजन करने में अगर तुम ही शिथिलता करोगे, तुम ही शिथिलता दिखलाओगे, तो फिर संसार में कुल और मर्यादा का पालन कौन करेगा। फिर से इसी श्लोक का अर्थ देख लें। निर्जीव विवेकी यानी हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में विश्व विशास दुनिया मूर्खतम पारिस्थिति का, तो फिर इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने कोई धर्म का पालन करेगा, अर्थात कोई। कवि का भाव है कि हे विद्वान पुरुष, यदि उचित और अनुचित, झूठ अथवा सत्य का विभाजन करने में अगर तुम ही आलस्य करोगे तो फिर संसार में कुल और मर्यादा का पालन कौन करेगा। तीसरे श्लोक में आए। कोकिलयापै देशान तावत् विरशान करील विदपेषु, यावल्ल तल्लिमाला क्वपि रसाला समूलसति। समूलसति माने होता है सुशोभित, रसाला माने आम, क्वपि माने कोई, यावल्ल तल्लिमाला यानी आम का वृक्ष जिस पर भौरे मंडरा रहे हो, करील विदपेषु करील का वृक्ष, और कोकिल यानी कोयल। कोकिलयापै देशान तावत् विरशान करील विदपेषु, हे कोयल, कोयल के माध्यम से उपदेश दिया गया। हे कोयल, तुम तब तक करील के इन वृक्षों पर, कोकिलयापै देशान, हे कोयल तुम तब तक करील के इन वृक्षों में, तावत् विरसान अपने ये शुष्क दिन व्यतीत कर लो। हे कोयल तुम तब तक करील के इन वृक्षों में अपने ये शुष्क दिन व्यतीत कर लो, जब तक यावल्ल तल्लिमाला क्वपि रसाला, जब तक कोई आम का वृक्ष, जब तक कोई आम का वृक्ष जिस पर भौरे एकत्रित ना हो रहे हो, सुशोभित ना हो रहे हो, तब तक तुम अपने गर्मी के ये शुष्क दिन इन करील के वृक्षों पर व्यतीत कर लो। जब तक कोई आम का वृक्ष जिस पर भौरे एकत्रित ना हो रहे हो, सुशोभित ना हो रहे हो, तब तक गर्मी के अपने ये शुष्क दिन इन करील के वृक्षों पर व्यतीत करो। कवि का भाव है कि हे विद्वान पुरुष, तब तक इन मूर्खों के बीच में रहे, तब तक इन मूर्खों के बीच में रहकर ये आनंद रहित दिन बिता लो, तब तक इन मूर्खों के बीच में रहकर ये आनंद रहित दिन बिता लो, जब तक कोई गुणी लोगों का समूह आपको नहीं मिलता, जब तक कोई गुणी लोगों का समूह आपको नहीं मिलता, तब तक अपने आनंद रहित ये दिन मूर्ख लोगों के बीच में बिताना। अगला श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं सुयताम्, आमोदा वैभव वसंत गगने सर्वे अपि नैतादृशा, केचित् दृष्टिगिरिर्भिरा दृश्यन्ति वसुधां वर्जन्ति, केचित् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य कुतो मा मोहं विनं च। रे रे चातक, रे रे चातक
बेचने से भी नहीं डरता। और षोडश में मुख्य दुखम सोने का जो मुख्य दुख है वो क्या है? यतो मां जन्म, क्योंकि लोग मुझे गुंजा अर्थात जो मापन का सबसे छोटा पैमाना होता है रत्ती, उससे तोड़ते हैं, इससे सोना। देखिए, ना मैं तारना तारना नहीं। सोना कहता है कि ना मैं पिटाई से डरता हूँ, तापना बड़ी मध्य, ना मैं अग्नि के बीच तपाए जाने से डरता हूँ, ना मैं विक्रिया त्रिमिस मानवास में, ना मुझे बेचे जाने से ही डर लगता है, भय होता है। षोडश में मुख्य दुखम सोने को मुख्य दुख है कि यतो मां जना गुंजा, तो कि लोग मुझे गुंजा अर्थात रत्ती से तोड़ते हैं, सोने का यही मुख्य दुख। इसका भावार्थ देखें बच्चों, गुणी व्यक्तियों के पक्ष में है कि किसी सज्जन व्यक्ति को अन्य विघ्न बाधाओं से कभी कोई डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, लेकिन जब उसकी तुलना कुछ नीच पुरुषों से की जाती है तो उसे इस बात से बहुत दुख होता है। तो ये बच्चों 5 श्लोक मैंने पढ़ाए, छठे श्लोक में आइए, इसका हिंदी अनुवाद पहले बताएं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रि गमिष्यति मीन्स क्या होता है? रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति माने होगी, सुप्रभातम् माने सुंदर प्रातःकाल होगी। भासाम उद्देश्यति यानी सूर्य उदय होगा। हसिष्यति हंसेगा। पंकजलि यानी कमल, सूर्य उदय होगा और कमल खिलेगा। तो 2 पंक्तियों का अर्थ देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल। भविष्यति सुप्रभातम् का क्या अर्थ है? सुंदर प्रातःकाल। भाषा सूर्योदयस्यति, और सूर्य उदय होगा और कमल खिलेगा। हसिष्यति पंकजलि का क्या अर्थ है? सूर्य उदय होगा और कमल खिलेगा, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते तिरुते। कमल कोश में बंद भौरा इस प्रकार सोचते हुए, इत्थम विचिन्त्यति भौरे के इस प्रकार सोचते हुए ही, हा हंता हंता नवनी गजा भुजहारा। हाय, बड़े दुख की बात है कि एक हथनी ने उस कमलनी को जड़ से ही उखाड़ दिया, उखाड़ कर खा गई। फिर से इसी का हिंदी अनुवाद देखिए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होगा और कमल खिलेगा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते तिरुते। कमल कोश के अंदर बंद भौरे के इस प्रकार सोचते ही, हा हंता हंता नन्ही गजा भुजहारा। एक हथनी ने उस कमलनी को जड़ से ही उखाड़ दिया। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े खेद की बात है। एक बार बच्चों फिर से इसी को देख लो। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा,
रहता है और सब आशाओं पर पानी फेर देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर भौरे के साथ हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही बच्चों। इसको होमवर्क की कॉपी में पुनः इसका ढूंढी अपना आपको पढ़ना। Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is outcomes of democracy. In my previous video, I had already explained you the civics chapter 6 political parties, and now the chapter 7 is outcome of democracy. This chapter is related for the class 10 social study English medium. Now let's start. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बार-बार हम लोग डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो बार-बार हमारे पास आया है और हमने बार-बार उसको एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। दिस डेफिनेशन इज फॉर, किसकी डेफिनेशन है ये? अब्राहम लिंकन की, जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि टू द पीपल है, फॉर द पीपल है और बाय द पीपल है। जिसमें क्या है, द होल पावर इज रिलेटेड टू द, या होल पावर जो है वो गेन कौन करता है? उसको पब्लिक करती है। पूरी जो पावर है वो पब्लिक के पास होती है। ठीक है। अब जो एक मेन आउटकम है, जो हम कहते हैं, एक जनरली जो एक आउटकम हमको देखकर आता है, सामने आता है कि व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी। एक मेन उसका आउटकम क्या है? तो मेन जो आउटकम है वो है टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो हमारा डेमोक्रेसी का आउटकम है वो है पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी। क्या मतलब हुआ इसका? कि डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर लोगों को पॉलिटिकली और सोशली इक्वल माना जाता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, creed, religion, language, gender, etc. So, the main outcome of the democracy is to provide political and social equality in the eyes of law, in the eyes of government. मतलब गवर्नमेंट की नजर में कह सकते हैं या कानून की नजर में हम कह सकते हैं क्या है? इक्वालिटी है सबसे फर्स्ट चीज, बिकॉज देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और हम वी चूज आवर लीडर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसी के साथ आपको पता है क्या होती है? मोनार्कीज होती है और डिक्टेटरशिप होती है। तो ये हमारी क्या है? अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। क्या चीज है? मोनार्की और डिक्टेटरशिप। स्टार्टिंग में क्या था? हमने शुरुआत के लिए 9th में भी हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से एक एक कंट्री में धीरे धीरे से करते हुए बहुत स्लोली जो है वो एक एक कंट्री डेमोक्रेटिक होती चली गई, क्योंकि पहले जो था वो डिक्टेटरशिप और मोनार्की ही होती थी। बट लोगों के स्ट्रगल से कह सकते हैं, जैसे हम लोग जो पॉपुलर स्ट्रगल में हमने चैप्टर में पढ़ा, जिसमें हमने नेपाल का भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि किस तरीके से नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जो है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए थे। ये तो हमने नेपाल का पढ़ा, बट ऐसे ही जितनी भी कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक होती गई हैं वो भी इतनी इजीली डेमोक्रेटिक नहीं हुई है। जब क्योंकि मोनार्की से डेमोक्रेटिक फॉर्म में चेंज होने में या कन्वर्ट होने में जो हमारी पब्लिक होती है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल्स होते हैं, जिसके बाद डेमोक्रेसी आती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्स होती है। ठीक है। तो अब जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो ये है कि टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। ये फर्स्ट हो गया। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट that works according to needs and expectations of citizen। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि यह जो आउटकम निकल कर आया है कि वो प्रोड्यूस कर रही है एक ऐसी गवर्नमेंट को जो कि काम करती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन। जो लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट से, उसी फॉर्म में वो वर्क करती है। एक कंडीशन है जो लोगों को जैसी चाहिए, जिस कंडीशन की गवर्नमेंट उनको चाहिए वैसी कंडीशन वो उनको प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है? ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है जो कि लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को, ठीक है, लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, बनाती है, बढ़ाती है। ठीक है।
अब देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है जो डेमोक्रेसी जो है हमारी वो फुलफिल कर रही है, या फिर डेमोक्रेसी उन, और दूसरी चीज पहले तो क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी कर रही है। मान लीजिए हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज्यादा है, बट क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, क्या वो उन सारी सिटीजन्स की नीड को और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है, या सिर्फ लिखा हुआ है। देखो दो चीजें होती है, जैसे कि हमने बोला कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है जो पब्लिक की है, पूरा पब्लिक के पास पूरा राइट है, सब कुछ है, बट क्या हम प्रैक्टिकली उसको देखें तो क्या ऐसा है, क्या सच में ऐसा होता है? जैसे कि मैंने पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत, मतलब हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं, एक उनकी बहुत अच्छी जो है मतलब रेपुटेशन होती है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लोगों के बारे में सोचती हैं, लोगों के व्यूज से मैच करती हैं, लोगों के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, एक बहुत मतलब हमें एक बहुत हेल्दी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम जो है वो उसकी एक अच्छी सी रेपुटेशन अपने माइंड में बनाते हैं। बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें, अगर हम देखें, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए होते हैं, पॉलिटिक्स हमारी डेली रूटीन में आती है। जैसे ही हम सबसे पहले उठ के न्यूज देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? हर तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स, क्या चल रहा है, क्या न्यूज में आ रहा है, मीडिया सारी भरी पड़ी हुई है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, बट वो चीजें सारी अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो वो पूरी नहीं हो रही है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी फुलफिल कर रही है उन एक्सपेक्टेशंस को? तीसरा क्या है कि क्या इंडिया ने डेवलप किया डेमोक्रेसी से? क्या जो डेमोक्रेसी आ गई उसमें इंडिया में कुछ डेवलप हुआ? क्या वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ी? ये भी चीजें इन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो अब क्या क्या असेसमेंट्स हैं आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी के? तो फर्स्ट इज टू प्रमोट इक्वालिटी। सबसे पहली चीज है कि जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। सेकंड चीज, एनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअली डिग्निटी को भी मेंटेन करती है। थर्ड इज इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। लोगों को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जहां पर जो पब्लिक होती है वो अवेयर होती है और अपने डिसीजंस को ले सकती है, उसके पास मतलब वो लेने के लिए अवेयर होती है। द थर्ड नेक्स्ट इज प्रोवाइड सम मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसमें हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी रिजॉल्व होते जाते हैं। एंड द लास्ट, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। इसके साथ साथ हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करते हैं। मे बी अगर हमने अपने किसी भी लीडर को चूज किया और हो सकता है वो लीडर जो हमारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव है वो उतना हमें अच्छा नहीं लगा, या उसने वो उन वर्क को नहीं कर पाया जो हमने एक्सपेक्टेशन उससे करी थी, तो हमारे पास 5 इयर्स का टाइम होता है। 5 इयर्स के बाद हम जब दोबारा से इलेक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। हमें अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का मौका भी मिलता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसी के साथ साथ अब क्या चीज, अब देखिए आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी फॉर मॉरल रीजन, या आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू? क्या सिर्फ मॉरल रीजन ही देती है या कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी है जो हमें डेमोक्रेसी से मिलते हैं? तो इसमें फाइनली हमने जो देखा वो क्या था, इट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्टली कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की फॉर्म है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ कंडीशंस देती है लोगों को कुछ भी अचीव करने का। एंड द लास्ट, सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशन एंड अचीव देयर गोल्स। और इन कंडीशन से एडवांटेज लेके जो सिटीजंस होते हैं वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो ये एक कंडीशन बनाती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं बाय द डेमोक्रेसी। एंड अब कुछ क्वालिटीज, सम क्वालिटीज आर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंसी एंड लेजिटिमेट। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन है सबके पास, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर